So, hello, Adab, Namaste, Sat Sri Akal, whatever you feel connected with. My name is Abhay Verma and I welcome you to the second lecture of the chapter Life Process, where today we are going to discuss the difference between the autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. Okay, and you also know that we are also continuing chemistry classes on the same chapter, so I request you to follow the same also for your chemistry notes. So let's start with the autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. As we already discussed last time, the autotrophic mode of nutrition is the mode of nutrition in which the organism synthesize its food on its own. So what actually happens in autotrophic mode of nutrition? Autotrophic mode of nutrition, organism takes in the inorganic substance from the surrounding. What are the inorganic substance? We will discuss in the upcoming chapter. बट फॉर अ ब्रीफ अभी मैं बता देता हूं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि CO2 होता है, वाटर होता है, सनलाइट होती है. दीज आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस टेकन इन बाय द ऑर्गेनिज्म एंड देन द ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट्स दिस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू द ऑर्गेनिक फूड. ऑर्गेनिक फूड इज मेजरली ग्लूकोज, और ग्लूकोज बाद में स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम स्टार्च बोलते हैं, स्पेशली इन प्लांट्स. और एनिमल्स में वही फूड स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ऑर्गेनिक फूड जो ग्लूकोज है वो एक सब कैटेगरी में आता है, एक बड़े मॉलिक्यूल की, जिसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट. एक फैमिली होती है कार्बोहाइड्रेट फैमिली जिसके अंदर ग्लूकोज आता है. ओके, नाउ हाउ फॉर एग्जांपल लेट्स सी, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द टर्म फोटोसिंथेसिस. हम सब ने पिछली क्लासेस में फोटोसिंथेसिस नाम का एक टर्म पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस में. वी नो दैट फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस जो कि प्लांट्स यूज करते हैं to make their own food. Now, how it actually happens? Let's see. The plants take the green plants in the presence of sunlight. Sunlight is one of the inorganic nutrient. Take in the CO2 from the atmosphere, which is also an organic nutrient. Then they take up the water, which is also an inorganic nutrient from the soil, and then they convert it into the food, that is the organic food, which is glucose. Glucose is produced in this process, and this process, whole process is known as the photosynthesis. Now, as you can see, in this process, the organism is actually synthesizing its own food. मतलब organism अपना food खुद बना रहा है. तो as we already discussed, जो autotrophic mode of nutrition है उसकी definition क्या थी? Autotrophic mode of nutrition भी वही mode of nutrition था जिसमें organism अपना food खुद बनाता है. Similarly, plants यहाँ पे through photosynthesis वही कर रहे हैं. So that's why this photosynthesis also, this mode of nutrition also comes in the autotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition, auto का मतलब होता है self and nutrition, trophic का मतलब होता है nutrition. So the mode of nutrition जिसमें organism अपना खुद बनाए food, उसे हम क्या बोलते हैं? Autotrophic mode of nutrition. So let's define it. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन अब हम प्रॉपरली अगर एक फाइनलाइज करें तो इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक फूड यूजिंग द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट. इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जैसे कि हमने फोटोसिंथेसिस में देखा क्या क्या थे? CO2 थे, H2O था, इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत पड़ती है. एंड सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रोड्यूस, एंड ऑल दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूसेस देयर फूड with the help of this autotrophic mode of nutrition, वो सारे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करके अपना फूड बनाते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स. मोस्टली प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज. सम बैक्टीरियाज में अगर आपको पर्टिकुलर एग्जांपल देखना हो तो साइनोबैक्टीरिया को वो बैक्टीरियाज होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. नाउ प्लांट्स में ओनली ग्रीन प्लांट्स. लेटर ऑन वी विल डिस्कस के ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. व्हाई ओनली ग्रीन प्लांट्स? इसका आंसर हमें धीरे धीरे मिल जाएगा आगे. नाउ हाउएवर देयर आर सम ऑर्गेनिज्म. अब हमने यहां तक कितना पढ़ लिया कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, बट हमने अभी बात करी थी कि एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसे हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो हाउएवर देयर आर सम ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. आप बताइए, आप अपना खाना खुद बना लेते हैं? अब ये मत बोलना घर पे जाके सर किचन में तो खाना खुद ही बनाते हैं. नहीं, वो बात नहीं. क्या आपको खाना बाहर से सब्जी बनी बनाई, मतलब बाहर से आप क्या करते हैं? सब्जी खरीद के लाते हैं
और उसको उसके थ्रू अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, ना कि आप खुद ही बाहर से CO2 ली, H2O आपने सराउंडिंग से लिया और अपना खाना खुद बना लिया। ऐसा नहीं होता। हमारे केस में हम खाने को बाहर से खरीदते हैं, देन खुद उसको जस्ट कुक करते हैं सो दैट वी कैन मेक इट एडिबल। अपने अकॉर्डिंगली हम कुक करते हैं और उससे खाना बनाते हैं। और इस प्रोसेस को, जिसमें हम किसी और चीज पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, जहां पे ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकता, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेट अस सी सम एग्जांपल। दिस इज अ टाइगर चेजिंग अ डियर। सो लॉयन क्या करते हैं, वो डियर को खाते हैं। दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना कहां ले रहा है, सराउंडिंग से ले रहा है, बाहर से बना रहा है, मतलब किसी और पे डिपेंडेंट है। सिमिलरली जो ये मंकी है, ये बनानास खाते हैं, डिपेंड होते हैं इन पे। सो देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स यू कैन सी इन दिस स्लाइड जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन अदर्स, एंड ट्रॉफिक इज न्यूट्रिशन। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर यू डिपेंड ऑन अदर्स इज नोन एज heterotrophic mode of nutrition. All animals and fungi, majorly all animals and fungi come in this category. Now in heterotrophic mode of nutrition, B variety, मैं लास्ट टाइम आपको थोड़ा सा ब्रीफ दिया था दैट दे आर डिफरेंट मोड, जैसे कि पैरासाइटिक होता है, होलोजोइक होता है, सेप्रोफाइटिक होता है। सो इन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑल्सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट स्ट्रेटेजीज टू ऑब्टेन फूड, और ये सब जो स्ट्रेटेजीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं अपॉन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डिपेंड अपॉन फर्स्ट द बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ बॉडी सिस्टम। एज एक बहुत इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल है हर्बीवोर्स जो होते हैं ना। अब हर्बीवोर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो ग्रास पे डिपेंड होते हैं, मतलब जो ईट करते हैं ग्रास को, ठीक है। और कार्निवोर्स होते हैं जो फ्लैश खाते हैं, मतलब कि मीट खाते हैं। सो हर्बीवोर्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, ग्रास पे एज अ फूड। और ग्रास एक प्लांट है, और प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनमें कंटेन होता है सेलुलोज। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो एज कंपेयर टू कार्निवोर्स थोड़ी सी लंबी होती है, बिकॉज दे नीड टू डाइजेस्ट द सेलुलोज कंपोनेंट प्रेजेंट इन द फूड। सो हर्बीवोर्स हैव a long small intestine, especially as compared to the carnivores. So carnivores have short intestine because they need to digest the animal meat, you can say meat. So non-vegetarian food that does not contain cellulose, which actually need to be digested by the herbivores actually. So therefore herbivores eat grass, whereas the carnivores eat flesh. Now the organization, whether the organism is unicellular or multicellular. Unicellular organism are those organisms which have single cell, and multicellular organism are those organisms which has more than one cell. Unicellular organism का बेस्ट एग्जांपल हमने पढ़ा था, कौन सा, अमीबा। बैक्टीरियाज भी होते हैं, बट लेट्स कम टू अमीबा बिकॉज हम उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने भी वाले हैं। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज डिफरेंट मोड, वेयर एज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज डिफरेंट मोड। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि अमीबा है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम प्रॉपरली पढ़ेंगे आगे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ फंक्शनिंग, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द ऑर्गेनिज्म इज सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, मतलब कि ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग फूड मटेरियल पे खाना खा रहा है, या फिर वो किसी और पे डिपेंड होके उससे सारा का सारा न्यूट्रिएंट ड्राइव कर रहा है, उस पे एज अ पैरासाइट रह रहा है और उस होस्ट से सारा न्यूट्रिएंट डिराइव कर रहा है। इस बात पे वो डिवाइड होता है दो पार्ट में, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। Now availability of food material, depending upon what is the type of food available around the organism. Now organism के अराउंड कौन कौन सा फूड अवेलेबल होता है, इस बात पे भी ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करेंगे। कई बार ऐसा होता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिज्म किसी और मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे शिफ्ट कर देता है। ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ द चैप्टर हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे आगे। I hope you like this video and I hope you like, so please do subscribe and share as much as possible. Thank you.